Hello everyone, once again today I again welcome you all in my chemistry class, that is Arun Sir chemistry classes. Till now in the surface chemistry chapter we have discussed a lot about adsorption, different type of adsorptions, their phenomena, what are the factors affecting the adsorption of gases on the solid. Then yesterday we have started with a new topic, that was catalysis. So today we'll continue with it. Today we'll be studying about phenomena of catalysis and the theories on the basis of which we can explain the concept of catalysis. कैटालिसिस दो टाइप की होती है, एक होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो पहले हम पढ़ते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस और फिर इसका मैकेनिज्म, उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और उसका मैकेनिज्म। होमोजीनियस मीन्स evenly distributed, all in same phase, means the phenomena in which reactants and catalysts are in same phase, that is known as homogeneous catalysis. यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज homogeneous catalysis. Example, sulfur dioxide gas react with oxygen gas in presence of a catalyst NO, nitric oxide, which is also a gas, to form SO3. So reactant and catalyst are in gaseous phase. Second example, carbon monoxide react with oxygen in presence of catalyst NO, तीनों के तीनों gases हैं, to form CO2, homogeneous catalysis. थर्ड एग्जाम्पल बढ़िया है, इथाइल एल्कोहल इन लिक्विड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. हियर सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज ए कैटलिस्ट. ये लिक्विड है, इथाइल एल्कोहल लिक्विड है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए होमोजीनियस कैटलिसिस. तो इथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म डाई इथाइल ईथर एंड वाटर. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ homogeneous catalysis, diethyl ether. Another example, this is an ester CH3COOCH3, methyl acetate, liquid, water, liquid in presence of dilute sulfuric acid, a catalyst in liquid state. So this is an example of hydrolysis of ester. This is methyl acetate, an ester. So this ester undergoes hydrolysis in presence of dilute sulfuric acid to form acetic acid and methyl alcohol. So catalyst and reactant are in liquid phase, so it is an example of homogeneous catalysis. So I think so that it is being cleared that in homogeneous catalysis reactant and the catalyst should be in same phase. In most of the cases products are also in the same phase. Now explanation, mechanism of homogeneous catalysis means how do a homogeneous catalysis takes place, what is the role of a catalyst, how does it helps the reactants to form into the products at a faster rate. So according to this mechanism, it is being popularly known as intermediate compound theory. नाम से क्लियर है, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी मतलब एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा और वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके फिर वो प्रोडक्ट बनाएगा और खुद अलग हो जाएगा. अंडरस्टैंड? एक बार फिर बता रहा हूँ, एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा जो अनस्टेबल होगा, फिर वो दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करके फिर प्रोडक्ट बना देगा और खुद एज इट इज़ आ जाएगा. सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कैटलिस्ट फर्स्ट रिएक्ट विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विच फर्दर कंबाइंस विथ another reactant to form product. For example, if I take an analogous example, analogy है ये अपने मन से बनाई हुई, A plus B
ये रिएक्टेंट है, सी कैटलिस्ट है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर ए और बी सी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, स्टेप 1 में एक रिएक्टेंट से कंबाइन करेगा, यानी रिएक्टेंट ए कंबाइन विद कैटलिस्ट टू फॉर्म AC which is an intermediate compound. This intermediate compound AC in step 2 react with another reactant B to form product and catalyst is released out. To prove this particular theory, I will take two specific examples. First, sulfur dioxide react with oxygen in presence of nitric oxide as a catalyst to form sulfur trioxide. So in step 1, NO जो कि कैटलिस्ट है react with half O2 जो एक रिएक्टेंट है to form NO2. यहाँ पर NO2 एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है. NO2 is a intermediate compound. अब ये NO2 दूसरा रिएक्टेंट यानी कि SO2 से रिएक्ट करके बनाता है SO3 और NO अलग हो जाता है. सो इन दिस वे NO एक्ट एज ए कैटलिस्ट. दूसरा एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल इन. दूसरा एग्जाम्पल जैसे एक बार और बता रहा हूँ मैं. इथाइल एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म डाईइथाइल ईथर एंड वाटर. अब ये होमोजीनियस कैटलिसिस है. तो मैकेनिज्म कैसे फॉलो करते हैं देखिए. यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इथाइल एल्कोहल के हैं. तो एक मॉलिक्यूल इथाइल एल्कोहल का एक रिएक्टेंट combines with catalyst that is sulfuric acid concentrated. It will form ethyl hydrogen sulfate C2H5HSO4 plus water. ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है. अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दूसरा मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल से जो दूसरा रिएक्टेंट हम ले सकते हैं combines to form product that is diethyl ether and sulfuric acid is released as it is. So in this way we can understand the mechanism of homogeneous catalysis on the basis of intermediate compound theory. Now we come to the next concept, that is heterogeneous catalysis. Heterogeneous means different phases. Simple. The phenomena in which reactants and catalysts are in different phases, then it is known as heterogeneous catalysis. बहुत एग्जाम्पल है, भरे पड़े हैं इसके. पहले एग्जाम्पल SO2 गैस रिएक्ट विथ O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 जो कि सॉलिड है कैटलिस्ट टू फॉर्म SO3. N2 गैस 3H2 गैस दोनों गैस हैं. कैटलिस्ट आयरन प्लस मोलिब्डेनम दोनों सॉलिड हैं टू फॉर्म अमोनिया. हेबर्स प्रोसेस. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस, these two reacts in presence of oxides of copper, zinc, chromium, iron, all are solid to form methyl alcohol. Manufacture of methyl alcohol from water gas, ये उसका एग्जाम्पल है. अमोनिया गैस react with O2 gas in presence of platinum catalyst at 1000 Kelvin temperature to form NO, nitric oxide and water. This is manufacture of nitric acid by Ostwald method. तो प्लेटिनम सॉलिड है, अमोनिया और O2 गैसेस. बंद. हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा है. वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन गैस गैसियस स्टेट में, दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट जो क्या है सॉलिड. तो एक रिएक्टेंट लिक्विड, एक रिएक्टेंट गैस और कैटलिस्ट है सॉलिड. Best example of heterogeneous catalysis to form vegetable fat. So these are the few examples of heterogeneous catalysis in which reactant and catalyst are in different phases. Now we should understand the mechanism of heterogeneous catalysis, that is adsorption theory. जहाँ पे नाम आ गया एडजॉर्प्शन थ्योरी तो मैं एक लाइन में आपको समझा सकता हूँ. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट होता है सॉलिड, इसका सरफेस एक्सपोज्ड है. तो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट आएंगे इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे.
जब यहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे तब फिर वो रिएक्शन करेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट और रिएक्ट करके बनाएंगे प्रोडक्ट फिर वहाँ से डीसॉर्ब होकर के हट जाएंगे। तो रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होंगे, प्रोडक्ट डीसॉर्ब होंगे और यहीं सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पर ही एड्सॉर्प्शन होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे विथ लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रिएक्शन विल बिकम फास्ट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन इन नटशेल ऑफ द एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब इसको एक एक करके आराम से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, at the surface of solid catalyst there exist free valencies, यानी जो कैटलिस्ट होता है उसकी सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती हैं। फ्री वैलेंसीज होती हैं इनकम्प्लीट वैलेंसीज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्यू मेटल्स which provides seat for chemical bonds, that is reactant will undergo chemical adsorption, यानी कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे ड्यू टू केमिकल एड्सॉर्प्शन। ड्यू टू दिस एड्सॉर्प्शन एट द सरफेस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, वहीं पर ही फ्री वैलेंसीज की सरफेस पर ही, और उसके बाद आफ्टर दिस डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था बिल्कुल वैसे ही, इसको आप ऐसे समझ सकते हो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होंगे क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस पर है फ्री वैलेंसीज, फिर वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे सरफेस पर, ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी, तीनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा जो कि आगे जाकर के ब्रेकअप हो जाएगा और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ब्रेकअप होकर के प्रोडक्ट को डिसॉर्ब कर देंगे और कैटलिस्ट फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो डिसॉर्प्शन के बाद ए बी नाम का प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग हो गया। देयरफॉर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड इन केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत आती हैं। नोट नंबर ए, एन एक्टिवेटर or promoter is a substance which increases the number of free valencies of catalyst due to which its catalytic power increases। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि एक्टिवेटर प्रोमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की कैटलिटिक पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो भाई कैसे करते हैं वो? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज ऑफ कैटलिस्ट। दूसरे बताए थे कैटलिस्ट पॉइजन, वो थे सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की कैटलिटिक पावर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये क्या करते होंगे? ये फ्री वैलेंसीज को ही खत्म कर देते होंगे। अ कैटलिस्ट पॉइजन डिस्ट्रॉयज फ्री वैलेंसीज ऑफ अ कैटलिस्ट। कैसे खत्म कर देते होंगे? बाय फॉर्मिंग परमानेंट बॉन्ड्स विद इट, यानी कि वो कैटलिस्ट के साथ ही परमानेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो फ्री वैलेंसी खत्म, तो रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन खत्म, कैटलिटिक पावर खत्म। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट या कैटलिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। पहला एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिविटी, यानी कैटलिस्ट की वो पावर, कैटलिस्ट की वो एबिलिटी जिसकी की वजह से वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्टिविटी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो एक दूसरे के साथ कभी रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में। H2 and O2 do not react without a catalyst, but they explodes in presence of platinum catalyst, यानी प्लेटिनम के प्रेजेंस में इनमें रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट टू फॉर्म वाटर विद द एक्सप्लोजन। सेकेंड इज हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन टू डू नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ईथीन से ईथेन बिना निकेट कैटलिस्ट के नहीं होता है कभी भी, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं कि एक कंटेनर में ईथीन ले लो, एक में फिर हाइड्रोजन ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, चलो भाई ईथेन बन गया। नहीं, वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, करेंगे भी तो इतनी स्लो करेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन
अगर निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट होगा तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट द रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। तो इथेन प्लस हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनाते हैं इथेन। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक्टिविटी। सेकेंड इज सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी, it is the ability of a catalyst to direct a particular reaction to yield a particular product। यानी कि एक सेट ऑफ रिएक्टेंट को वो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स सेम रिएक्टेंट्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट एक, कैटलिस्ट अनेक, प्रोडक्ट अनेक। यानी कि सेम रिएक्टेंट पर अगर हम अलग अलग कैटलिस्ट प्रोवाइड करें तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। एग्जांपल देखें, इथाइन प्लस हाइड्रोजन, अगर निकल कैटलिस्ट लेते हैं तो बनता है इथेन, और अगर लिंडलास कैटलिस्ट लेते हैं तो बनाता है वो इथेन। तो रिएक्टेंट एक, कैटलिस्ट दो, प्रोडक्ट भी अलग अलग दो। सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर in presence of copper catalyst it will form formaldehyde। और यही दोनों ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, जिंक, क्रोमियम, आयरन के प्रेजेंस पर रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मिथेनॉल। और अगर यही दोनों निकल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मीथेन एंड वाटर। तो तीन अलग अलग मैंने कैटलिस्ट लिए तो सेम रिएक्टेंट तीन अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। थर्ड इज स्पेसिफिसिटी। It means that a substance which can act as catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction। यानी ऐसा नहीं है कि एक कैटलिस्ट है तो चलो भाई किसी भी रिएक्शन में लगा दो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली V2O5 ये एक वो कैटलिस्ट है विच ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, but it cannot be used for oxidation of ammonia to form nitric oxide। यहाँ ऊपर भी देख लो, निकल इथाइन से इथेन बना सकता है। अब निकल को आप ले लो और बोलो चलो भाई वेजिटेबल ऑयल से हम मान लीजिए बनाना चाहते हैं कुछ और कंपाउंड, वेजिटेबल फैट ना होकर के कुछ और बनाना चाहते हैं तो ये कैटलाइज नहीं होगा, ये सिर्फ वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट ही बनाएगा। अब यही निकल को तुम कहो कि N2+3S2 हेबर्स प्रोसेस में यूज़ कर लें कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और हेबर प्रोसेस में यूज़ होता है अमोनिया आयरन कैटलिस्ट, तो उस आयरन को यहाँ पे ले लें तो वो इथेन नहीं बनाएगा। तो ये ध्यान रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी। तो फिर आज हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू कैटलिसिस। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैटलिसिस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, दोनों के मैकेनिज्म ज़रूर याद रखें, और ख़ास तौर पे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के इम्पैक्ट ऑन प्रोमोटर एंड एक्टिविटी। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट यानी कि एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। गॉड ब्लेस।